Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities, and in today's video we are going to discuss the last chapter of macroeconomics, that is excess demand and deficient demand. But before that, first we need to understand equilibrium. So equilibrium is a situation where we know that is AD is equals to AS, right? This is the equilibrium situation. This is the kind of, you can say, equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply. Okay, now when aggregate demand becomes greater than aggregate supply, that is AD is greater than aggregate supply, this is a point of excess demand, right? And this lead to rise in prices. So prices kya ho jayenge, right? Rise, that means inflation is there. Okay, we need to know the concept of excess demand. And now deficient demand is what? That is just, you can say, the opposite of that. Okay, deficient demand. Okay, when AD is less than, okay, AD is less than aggregate supply. And here what happens? There is a fall, which leads to fall in price, prices fall, and unemployment slow down. Unemployment, okay, slow down. So this is basic crux of this chapter. Okay, now here what you can say, excess demand means too much spending in the economy. Okay, too much spending is there. And deficient means too little spending, right? And maintaining balance between the two is the key to a stable economy. Okay, so now let's start here with this. I have prepared a slide for you, and with the diagrams also you can learn each and every concept in detail, and how you're going to explain the diagram also, that is also being told. Okay, so let's start here. First of all, equilibrium, I've already told you, where AD is equals to AS, right? According to Keynes, equilibrium level may exceed or fall short of full employment level. Now, if equilibrium level exceeds the full employment level, then there is an excess demand. So this is the equilibrium level, this is AS point, and this is AD. Okay, now when AD is increasing, okay, or AD is more than AS, this is AD here, okay, this is the actual AD, and now it's increased to this. Okay, so here it means the difference between the actual AD and this increased AD is E and F, and this is known as the inflationary gap, because here you can see the price. Earlier the price was here and now it's rises. Okay, so the problem of inflation, you can say, exists in the case of excess demand. Okay, now if equilibrium falls short of full employment level, then there is deficient demand. Now excess demand in detail we can just write here like this. It refers to situation when AD is more than AS corresponding to the full employment. ये full employment आपको जरूर mention करना है, right? E here, यानी जो पहली आपकी curve बनेगी AS, that is a 45-degree angle, and AD, this one, C plus I. Okay, ये पहली आपकी main ये है. तो this is the equilibrium point, and this is the condition of full employment equilibrium. Okay, and excess demand give rise to an inflationary gap. जो excess demand हुई, यानी कि ये जो आपकी new बनी है dotted line, that is the AD1. Okay, और ये आपकी AD क्या है? Actual. Okay, inflationary gap refers to the gap in which actual AD exceeds the AD required to establish full employment equilibrium, and it leads to a rise in general price level. You can see in the diagram also. Now we are going to explain the diagram. That is, income, output, and employment are measured on x-axis. So you can see here on the x-axis, you can see income, output, employment. On the y-axis, aggregate demand. Okay, then AD and AS intersect at point E. Now you can easily see that AD and AS intersect at point E, that is the equilibrium or full employment equilibrium. Then full employment हो गया. Then due to increase in investment, that is I, AD rises from AD to AD1. तो increase in investment भी होगा आपका excess demand में, right? तो जैसे आपका AD ये था, तो आपका increase करके AD1 हो गया, that is C plus I plus change in investment. Increase in investment, that is change in investment. ये delta जो बना है, triangle बना है, it is called change or delta. Okay, तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा? प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन. इट इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द गैप इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप. Now, reasons for excess demand. Reason for excess demand is what? Rise in propensity to consume. तो कंजम्पशन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, एंड जो आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कम हो जाती है, राइट? ओके, एक चीज बढ़ रही तो एक चीज कम होगी. रिडक्शन इन टैक्सेस, जो टैक्सेस है गवर्नमेंट वो इम्पोज कम करती है. ओके, रिडक्शन इन टैक्सेस, एंड बिकॉज ऑफ इट देयर इज इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टैक्सेस.
देन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, आपने देखा पहले इसमें कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ दैट द कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, देन फॉल इन imports. Now, decrease in imports due to higher international prices in comparison to domestic prices, and it leads to excess demand. Okay, and in rise in exports, because here when demand for export increase due to comparatively lower price of domestic goods or due to decrease in the exchange rate for domestic currency, right, and it results in excess demand. Now, deficit financing is what the policy of RBI to print new notes is called the deficit financing, right, to do increase in money supply. So what happens here? The excess demand may cause due to increase in the money supply caused by the deficit financing, right? Now, impact of excess demand, it is always asked. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्पैक्ट क्या होता है अगर एक्सेस डिमांड आपकी एग्जिस्ट कर रही है इकोनॉमी में, तो उसमें आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा. फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. खाली प्राइस में आपको डायग्राम पता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आउटपुट भी एक है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी आपका ऑलरेडी आप इक्विलिब्रियम पे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो सिर्फ प्राइस चेंज करेगा. डायग्राम से भी आप लर्न कर सकते हैं एंड यू शुड नो द डायग्राम ऑल्सो, और इसको भी आप बनाएंगे और इसको इस तरह आप एक्सप्लेन भी करेंगे. एक्सप्लेनेशन मैंने 4 पॉइंट्स में दे रखा है. एंड इम्पैक्ट यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. आउटपुट पहले लिखा, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. सिमिलरली आप एम्प्लॉयमेंट के लिए लिखेंगे, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नो चेंज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्वल्स. दोनों का सेम ही है, ठीक है. प्राइस, इट्स लीड्स टू इन्फ्लेशन मींस जनरल प्राइस लेवल राइजेस, एडी इज मोर देन एएस. तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डायग्राम में कि प्राइस सिर्फ बड़ा है, बाकी चीजें सब ऐसे ही है, राइट. Now, deficient demand, it means it is just the opposite of excess demand, right? It refers to the situation when AD is less than AS. तो aggregate demand क्या है आपकी, कम है. तो देखिए इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे आया और सिर्फ AD में चेंज हो रहा है, राइट. एडी आपकी कम हो गई, ठीक है. दैट इज एडी क्या हो गया, एक्चुअल आपका एडी ये था और एडी 1 जब हुआ तो इसका मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी आपका कम हो गया, राइट. एंड एफ इज व्हाट, यहाँ पे आपका कट कर रहा है ये, ठीक है, ये एडी वाला AD1. तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ इज योर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. Underemployment equilibrium is mentioned here. Okay, now it rises when planned aggregate expenditure falls short of aggregate supply at full employment level. It give rise to the deflationary gap. वहां पे क्या था, inflationary gap था excess demand में. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका E और F का जो difference है यहाँ पे, okay, this is known as the deflationary gap. Deficient से deflationary. Okay, deflationary gap is the gap by which actual AD falls short. अब actual AD हमारे पास इतना होना चाहिए था, but it falls short of AD required to establish full employment equilibrium. Now we can explain this with the help of diagram. कैसे explanation होगा? First you have to mention y axis पे आपने क्या लिया है, then x axis पे क्या लिया है, and then where it is cutting the equilibrium point, and then fall of AD1. Just because of that the gap is known as a deflationary gap. देखिए यहीं पे वहां पे ये सब चीजें लिखी हुई, income, output, employment are measured on x axis and AD is measured on y axis. तो ये it's clear, quite clear to you. AD and AS curve intersect at point E, which indicates full employment equilibrium, right? Now, due to increase in investment, AD falls from AD to AD1. It denotes situation of deficient demand, and the gap between them is termed as deflationary gap. That is F and G. Sorry, E and G. ठीक है, इक्विलिब्रियम से और जी पे गैप जो आ रहा है, दैट इज अ डिफ्लेशनरी गैप. पॉइंट एफ इंडिकेट्स द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यहाँ पे कट कर रहा है तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, राइट. नाउ द रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वहां पे क्या था, एक्सेस डिमांड में इंक्रीज था, राइट. देन इंक्रीज इन टैक्सेस. अब जाहिर सी बात है जब आप टैक्सेस बढ़ा दोगे तो डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है. डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वहां पे क्या था, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट था. उसका जस्ट ऑपोजिट आप एक चीज याद करेंगे, दूसरी अपने आप आपकी रेडी हो जाएगी उसमें, ठीक है. तो ये बहुत सिंपल सा और इजी चैप्टर है, उसमें डायग्राम्स बस यही आपके मेन है, राइट. देन फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. ओके, देन एडीएन गिव्स राइज टू द डेफिशिएंट डिमांड. देन राइज इन इंपोर्ट्स. ओके, इंपोर्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे. व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस आर लेस देन डोमेस्टिक प्राइसेस, देन जाहिर सी बात है हम इंपोर्ट्स बाहर से ही करेंगे. वेयर एज फॉल इन एक्सपोर्ट्स आर ड्यू टू हायर प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी. उसका जस्ट रिवर्स आ जाएगा, राइट. ना इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इसका भी जस्ट ऑपोजिट होगा, रिएक्शन उसका आएगा. इफेक्ट ऑन आउटपुट, ना ड्यू टू लैक ऑफ एडी इन्वेंट्री स्टॉक विल इंक्रीज, क्योंकि आपके यहाँ डिमांड नहीं आ रही है, राइट. तो बिकॉज ऑफ दैट इन्वेंट्री स्टॉक आपकी ऑलरेडी जो बनाया है आपने प्रोडक्शन, वो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा बिकॉज देयर इज नो डिमांड,
ओके, या डिमांड बहुत कम है, तो प्रोडक्शन विल बी लेस एंड प्लान्ड आउटपुट विल फॉल। देन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयमेंट भी आपका कम होगा। इट कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट। देन इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। तो हर चीज इसमें क्या कर रही है, फॉल कर रही है। डेफिशिएंट में आप ये याद रखिएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे प्रोडक्शन की, बिकॉज इन्वेंट्री इज ऑलरेडी देयर, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो वही इन्वेंट्री बची हुई, तो हम एम्प्लॉयमेंट भी उतना नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें लॉजिकली आपको सोचनी पड़ेंगी। नाउ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, डिफरेंस बिटवीन वी हैव ऑलरेडी रेड, बट नाउ इट इज हियर। इसमें आप डायग्राम अपने आप ऐड कर लीजिएगा। मीनिंग क्या है एक्सेस डिमांड? इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब क्या है, डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। तो अब यहाँ करेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम एग्रीगेट इसमें ऐड कर लेंगे। सिंपल सी चीजें आपको बस याद रखनी है। डेफिशिएंट डिमांड रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अच्छा, ये चीज जरूर लिखना है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट को ही हम लेके चल रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो ये जरूर से आपको मेंशन करना होगा। देन इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप किस में आता है? एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी गैप, एंड डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, इट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड में। देन इक्विलिब्रियम लेवल, आपको पता है, इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो आपका इक्विलिब्रियम था उसके ऊपर आपका एडी चला जाता है, राइट। और इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, एंड प्राइसेस राइजेस, एंड इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो आपको इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट का फुल इक्विलिब्रियम चाहिए था वो भी आप अचीव नहीं कर पाते, राइट। वो हमें डायग्राम्स में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। नाउ रीजन, excess demand occurs due to excess of anticipated expenditure, means expenditure is high, consumption ज्यादा है, due to rise in consumption expenditure and investment। यानी कि आपको पता है कि excess demand में क्या होता है, AD is equals to C plus I plus change in investment, right। और deficient demand में क्या होता है, इसको opposite, it indicates under employment। It occurs due to the shortage of anticipated expenditure due to fall in consumption, expenditure, and investment. उसका just opposite. Impact on output and employment, we have already discussed. In excess demand, there is no change in output and employment because the economy is already in full employment equilibrium. Okay, and यहाँ पे क्या हो जाएगा? There is a fall in output and employment due to shortage of aggregate demand. Now, impact on price. Price का impact क्या होता है excess demand में? That is price rises. ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन, बिकॉज डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, एंड हियर डिमांड इज लेस देन इट सप्लाई, तो प्राइस का क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। ओके, इट रिजल्ट्स इन फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, होप you understand it very well. Okay, and thank you for watching. Keep learning, keep growing. Don't forget to subscribe to Economics at Ease, simplifying economics one step at a time. See you in the next class. Thank you. So now we are going to discuss another important point here in the chapter of excess demand and deficient demand. So measures to control excess demand and deficient demand here. Okay. So the measures are here. The problem of excess and deficient demand occur when you know that is current AD is more or less than the AD required for full employment equilibrium. We know the condition of full employment equilibrium. Okay. Now change in government spending. The first of all क्या होता है, change in government spending जब होती है तब ये problem आती है. This measure is a part of fiscal policy. Fiscal policy is what it is termed as expenditure policy or revenue policy of the government. Now the government spends a huge amount on public works like construction of roads, flyovers, railway lines, etc. A change in expenditure affect AD and control the situation of excess and deficient demand. Okay, so these are the common measures. But how they are going to control, we will discuss in the next slide. Okay. Now, change in taxes. If the taxes are changed, then again, it can easily control the excess demand and deficient demand situation. Now, taxes is what? It is again a fiscal policy and it is termed as revenue policy. So, I have already told you that is the policies, that is fiscal policy is a kind of revenue and expenditure policy by the government to control the situation of excess and deficient demand, right? Government changes in taxes by the government influence the level of AD, that is aggregate demand, and helps to control excess and deficient demand in the economy. So these are basically the three things by which the government controls the excess demand and deficient demand. So this is the fiscal policy, that is change in government spending and change in taxes. Now let's just revise this change in money supply or availability of credit, that is the monetary policy. We have already discussed in the previous chapter, banking, right? So the RBI is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy. Now you know each and every monetary policy in detail, and you can also just recall or revise it from the banking chapter, that is a quantitative instrument.
इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो वही सेम आपके आंसर्स यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, राइट? बस खाली आपको ये चीज पढ़नी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, दैट इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड चेंज इन टैक्सेस। बाकी सब सेम चीजें रहेंगी वहां पे, राइट? तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? दीज इंस्ट्रूमेंट्स एम टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन सर्कुलेशन, दैट इज द बैंक रेट एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। देखो वही सब सेम चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं, तो आपके पॉइंट्स भी वही सेम चीज है, ठीक है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट हम बढ़ा देंगे तो कैसा मनी सप्लाई होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? हाउ सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जस्ट कंट्रोल इट, ओके, द मनी सप्लाई, वही सब सेम चीजें रिपीट कर रही हैं। देन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दीज इंस्ट्रूमेंट्स एम टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ओके, आई होप एवरीथिंग आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं। ओके, सेम आंसर्स भी वही होंगे ना। मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, अब अगर एक्सेस डिमांड सिचुएशन है, यहाँ पे आपके एडी इज मोर देन एएस, देन हाउ यू गोइंग टू कंट्रोल, हाउ मतलब गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, राइट? ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द करंट डिमांड एडी इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, फॉलोइंग मेजर्स आर अडॉप्टेड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो मैंने बहुत ही कम उसमें लाइंस में इसको डिस्क्राइब कर दिया है, होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसमें कोई भी आपको मुझे ज्यादा समझाने की डिटेल में जरूरत नहीं पड़ी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सबसे क्या पहले क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो भी स्पेंड कर रहा है उसको कम कर देंगे इन ऑर्डर टू इन कंट्रोल एक्सेस डिमांड। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट एक्सपेंडिचर, इट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ एडी एंड हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। ओके, उसमें क्या होता था एक्सेस डिमांड में, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती थी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती, राइट? इंक्रीज इन टैक्सेस, उसमें क्या था, डिक्रीज इन टैक्सेस होता था, तभी तो आपके पास परचेसिंग पावर ज्यादा आती थी, राइट? तो एक्सेस डिमांड में तो इंक्रीज इन टैक्सेस जब कर देंगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा खर्च करने के लिए। गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। तो बस लॉजिकली आप इसको फॉलो करते रहे, राइट? देन डिक्रीज इन मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अब आप मनी सप्लाई अगर कम कर देंगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो जो एक्सेस डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल कर देगा। द टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू डिक्रीज मनी सप्लाई आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ वी विल नो, we will just see that how increase in bank rate control excess demand. Bank rate is the rate at which central bank lends money to the commercial banks to meet their long term, तो ये long term basis पे होता है बैंक रेट, राइट? ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई increases the bank rate which raises the cost of borrowing from the central bank and because of which the commercial banks also increases their lending rate. जब lending rate ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपके borrowers कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको रेट ज्यादा आपको पड़ रहा है, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है बैंक को, and it reduces the availability of credit and help to correct excess demand. I hope it's clear. Then increase in repo rate. So repo rate का पहले अपनी मीनिंग एक बार में लिखा, that is repo rate is the rate at which RBI lends money to commercial banks to meet their short term needs. जहाँ पे long term needs होगा वहाँ पे बैंक रेट होगा, जहाँ पे repo rate है इसका मतलब है short term. During excess demand, RBI increases the repo rate, which increases the cost of borrowing from central bank. ठीक है, तो अब central bank से ही तो commercial banks लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाएगा। द कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस देयर लेंडिंग रेट, डिस्करेज, सेम चीज वही हो जाएगी, बट द बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट फॉर द शॉर्ट टर्म टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। ओके, देन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स, ये फंड्स, ओके, एन है यहाँ पे, विद आरबीआई। ठीक है, तो जो डिपॉजिट करता है सरप्लस फंड्स, जो उसके पास एक्स्ट्रा आ जाता है कमर्शियल बैंक के पास, ये सब मैंने डिटेल में आपको बैंकिंग चैप्टर में पढ़ाया है। दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, ओके, they can go and watch all the list, all the, you can say, the chapters of macroeconomics and microeconomics with solutions, with numericals, with pyqs, everything is already uploaded, playlist बनी हुई है, आप please do and watch, okay? And during excess demand, reverse repo rate may be increased by the central bank and vice versa, encourages the commercial bank to park their surplus funds with RBI and reduces the credit rating power of commercial banks. Okay, तो डिटेल में सब कुछ मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, राइट? देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज. ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to sale and purchase of securities in the open market by RBI. ये आपको पता है मीनिंग. During excess demand, central bank offers securities for sale, and then the sale of securities reduces the reserves of commercial banks. जाहिर सी बात है, जब आप सेल ऑफ सिक्योरिटीज करेंगे तो आप उसके बदले में पैसा देंगे और आपके पास परचेजिंग पावर, रिजर्व जो है कम हो जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास. नो इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, दैट इज LRR. इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया था, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. एंड इंक्रीज इन सच रिजर्व इज अ डायरेक्ट मेथड टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट
ओके, क्रेडिट कम करना होता है। टू कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व क्या है, एक CRR है, एक SLR है। SLR का मतलब सेल्फ वाला होता है और ये क्या होता है, सेंट्रल बैंक का, राइट। सो कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को सी से हमने क्या कह डिनोट, कमर्शियल बैंक को उसके पास रखवाना होता है सेंट्रल बैंक के पास एक परसेंटेज, ओके। देन स्टैट्यूटरी liquidity ratio, that is SLR, it is the minimum percentage of net demand and time liabilities which commercial bank self मतलब अपने पास उसको ये मेंटेन करना चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, जाहिर सी बात है एक्सेस डिमांड भी आपके कंट्रोल कर लेंगे जब परसेंटेज उसका इंक्रीज कर देंगे। टू करेक्ट एक्सेस डिमांड RBI इंक्रीजेस CRR एंड SLR, वही जो मैंने बताया अभी वही। इट रिड्यूसेस कैश रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड लिमिट्स देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। ना क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, that is increase in margin requirements, moral suasions and selective credit control. Now it refers to the difference between the market value of security offered and the value of amount lent, यानी कि जो difference होता है एक सिक्योरिटी के आपको जो ऑफर कर रहे हैं और वैल्यू ऑफ अमाउंट टू बी लेंट, ओके। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड RBI इंक्रीजेस द मार्जिन विच रिस्ट्रिक्ट्स द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक्स। तो ये सब डिटेल में आपके बैंकिंग चैप्टर में है, प्लीज गो थ्रू दैट, आपको और आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने कम ही सेंटेंसेस में इसको डिफाइन किया है। मॉरल सुएजन और एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग, अब ये क्या करता है सेंट्रल बैंक, इट एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशन, लेटर्स, स्पीचेस, गिफ्ट गिवन टू बैंक्स, ये सब सेंट्रल बैंक कर रहा है RBI। ड्यूरिंग एक्सीड्स डिमांड RBI एडवाइजेस, रिक्वेस्ट और परसुएड्स द कमर्शियल बैंक्स, यानी ऑर्डर्स करता है कमर्शियल बैंक्स को नॉट टू एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेक्यूलेटिव एंड नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, दस रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि कुछ ही जगह पे आप खाली वो बोलता है, जहां पे वो बोल रहा है वहां पे आपको खाली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना है, अदरवाइज इट रिड्यूसेस नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज पे आपको नहीं करना है, राइट। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंट्रोड्यूस क्रेडिट रैशनिंग, इट रिफर्स टू अ मेथड इन विच RBI गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस, यानी कि सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां पे RBI खाली उन्हीं सेक्टर्स को प्रमोट करेगा और बाकी सब में आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, दैट इज आप मतलब यहाँ पे कौन है, कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो मेजरिंग्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, ये मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना दिया, आप इसको देख सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी में आ जाएगा डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस, एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आप इतना ये लिखेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आप ये लिखेंगे। सेंट्रल बैंक मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, ये था एक्सेस डिमांड का जो भी हमने पढ़ा है, ये है डेफिशिएंट डिमांड मींस व्हेन AD इज लेस देन AS, ओके। इट हैपेंस ड्यू टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, फॉलोइंग मेजर्स मे बी अडॉप्टेड टू करेक्ट इट। अब वही सब चीजें जितनी भी आपने एक्सेस डिमांड में पढ़ी थी उन सबको रिवर्स कर देंगे, उसका सबका ऑपोजिट आ जाएगा। तो एक अगर आप आंसर तैयार कर रहे हैं तो अपने आप दूसरा हो जाएगा, ओके। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वहां पे डिक्रीज था। डिक्रीज इन टैक्सेस, वहां पे इंक्रीज इन टैक्सेस था। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसी, ये सब मैंने लिखा हुआ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। देन टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स वही है, सब चीजें वही है, बस जहां पे आपने वहां पे इंक्रीज करा है तो यहाँ पे सब चीजों को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। या अगर यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे इंक्रीज कर देंगे, बस यही समझना है। डिक्रीज इन बैंक रेट ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, सेंट्रल बैंक reduces the bank rate to expand credit. It leads to a fall in the market rate of interest, which induces people to borrow more funds, right? Then decrease in repo rate, the central bank reduces repo rate to expand credit. It leads to fall in the interest rate, which induces people to borrow more funds and increase AD. Then decrease in reverse repo rate. Everything is already explained. Then open market operations, purchase of securities, वहाँ पे sale of securities था excess demand में. Then decrease in legal reserve requirement, that is LRR, वहाँ पे कहता है increase था, ठीक है। CRR और SLR को इन्होंने explain कर दिया. Then qualitative instrument, that is decrease in margin requirements, वहां पे कहते हैं एक्सेस डिमांड में इंक्रीज था। देन मॉरल सुएशन, एडवाइस टू इनकरेज लेंडिंग, वहां पे डिस्करेज लेंडिंग्स था, राइट। एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, विदड्रॉ क्रेडिट रैशनिंग, और यहाँ पे क्या करेंगे आपको और वहां पे इंक्रीज कर रहे थे, राइट, इनकरेज कर रहे थे। नाउ मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, अगेन जो चीजें थी सब उसका रिवर्स आ जाएगा एक्सेस डिमांड का, यहाँ पे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ हियर द डिफरेंस बिटवीन, जो कभी पूछा जा सकता है आपसे, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, इट इज द गैप बिटवीन विच इज एक्चुअल AD exceeds the AD required to establish full employment equilibrium, right? And deflationary gap, it is the gap by which actual AD falls short of the AD required to establish full employment equilibrium. तो हमने डायग्राम में पढ़ लिया है, राइट। इम्पैक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा इन्फ्लेशनरी में, कोई भी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग
स्पेंडिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये हमको पहले ही बता दिया था। एंड डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा, देयर इज अ फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, एग्रीगेट डिमांड ही कम हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। देन इम्पैक्ट ऑन प्राइस, यहाँ पे प्राइस क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ओके, इन्फ्लेशनरी गैप है, और डिफ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप में क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन, यानी कि प्राइस कम हो जाएगा, राइट। फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ना, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई रखता है, that is the credit control and money supply by the Reserve Bank of India, or fiscal policy that is the revenue and expenditure by the taxes जो होते हैं वो सब क्या करता है, गवर्नमेंट करता है, right, controls the government. Then monetary policy is controlled by central bank, whereas fiscal policy is controlled by the government of country. Then tools of monetary policy आपने बता दिया, open market operation, reverse repo rate, reverse, and then आपका आ जाएगा reserve requirement margin, moral suasion, okay, एंड बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा जो बैंकिंग चैप्टर का था, राइट। और फिस्कल पॉलिसी में क्या आ जाएगा, सिर्फ दो आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी दैट इज टैक्सेस, और पब्लिक बोरोइंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, राइट। नाउ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो ये आपके वही सिचुएशन आ जाएगी, राइट। इट रिफर्स टू सिचुएशन जहां पे एडी इज इक्वल्स टू एएस है, ठीक है। ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, दैट इज situation when AD is equals to AS, but all those who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work, उनको work नहीं मिल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है हम। एट दिस इम्पैक्ट क्या होता है, रियल आउटपुट एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल, रियल आउटपुट रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे रियल आउटपुट क्या होता है आपका, मैक्सिमम चला जाता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट रीचेज इट्स मैक्सिमम। Then inflationary gap, any excess of AD over AS corresponding to full employment and equilibrium leads to inflationary gap, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप आपका दिखेगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इट एनी एक्सेस ऑफ एडी ओवर एस बियॉन्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डज नॉट लीड टू इन्फ्लेशनरी गैप, तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप आपको नहीं मिलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड for the chapters of microeconomics and macroeconomics, all the playlist has been already uploaded. Okay, please do watch all the questions, all the numericals with solutions, PYQs. Okay, all are already uploaded. Please go through that and keep watching. Okay, and most probably I'm going to just make the videos on the statistics also. Okay, and only numerical question will be solved. Okay, so please just keep watching and keep growing. Thank you.